everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डीएस की क्लास, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की क्लास करने वाले हैं एंड ये क्लास नंबर आपका 115 है. ऑलरेडी इससे पहले जो हम 114 क्लासेस कर चुके हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू गो थ्रू विद ऑल द क्लासेस विच वी हैड डन बिफोर एंड इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल्सो दैट अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज जो हम डिस्कस करने वालेंगे वो हम लॉजिंग के बारे में पढ़ेंगे. लॉजिंग जो क्या होता है एंड उसके साथ साथ हम रेप्लिकेशन क्या होता है, क्या यूज़ है हमारे डीएस में, दैट इज़ इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन. सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द लॉजिंग. लॉजिंग देखते हैं क्या है. इन द लॉजिंग टेक्निक, अगर लॉजिंग टेक्निक की बात करें, द रिकवरी फाइल रिप्रेजेंट्स अ लॉग कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ all the transactions performed by a server. So एक सर्वर जो जितने भी transactions को perform करता है and that representation contains a log and वो पूरी history आपको बताता है कितना transaction उसने perform किया एक particular server ने. Moving on with next point for the lodging is the history consists of values of object. अब वो history क्या conclude करती है, क्या उसके पास history as history होता है, value of objects होता है, transaction status होता है, transaction status entries and intentions list of transactions. So what were the intention list? They are all in the log 1 as in history, okay, of a transaction. The order of the entries in the log reflects the order in which the transaction have prepared, committed and aborted at that server. एक सर्वर पे जो ऑर्डर होता है एंट्रीज का, उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट, वो बताता क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो प्रिपेयर्ड कब हुआ है, कमिट कब किया गया है, अबॉर्ट कब किया गया है एक पर्टिकुलर सर्वर का. Moving on with next point that during the normal operation of server, अगर हम normal operation of server की बात करें, its recovery manager is called whenever a transaction prepares to commit or abort a transaction. तो basically the normal operation जो server का होता है, अगर उसका recovery manager ही को हमेशा call किया जाता है for what, for the transaction that prepares for the commit or abort for that particular transaction. When the servers is prepared to commit, जब सर्वर जो होता है वो अगर प्रिपेयर किया जाता है फॉर द कॉमिट, a transaction recovery manager appends all the objects in its intentions list to the recovery file followed by the current status of the transactions that was prepared together with its intention list. So the recovery manager is supposed to answer about what the transaction has been committed or about for the following. So they used to tackle that problem which they are facing, and it basically tells about that what that it performs and why the transaction has been aborted or why the transaction has been committed. So all this information was given by your lodging and by the recovery manager, that the recovery file consists of all the preparations and the togetherness. They are in the intention list. Next point that we have is when a transaction is eventually committed और अबॉर्टेड, जब ट्रांजेक्शन जो होता है वो इवेंचुअली कमिट किया जाता है या अबॉर्ट किया जाता है, द रिकवरी मैनेजर दैट इज RM, रिकवरी मैनेजर को हम RM भी बोलते हैं, द रिकवरी मैनेजर अपेंड्स द करस्पॉन्डिंग स्टेटस ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द रिकवरी फाइल. तो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन का रिकवरी फाइल में ही वो रिकवरी मैनेजर जो होता है वो सारा करस्पॉन्ड करता है पूरा डेटा. Next, moving on with next that I had said you before also, that replication we will be discussing in this class. So replication, what will is the replication and what were the applications that are performed in the replication. Starting with the replication, that is replication is the process of storing copies of data at more than one node. तो जो replication होता है वो एक तरह का process है, store data copy, जो data का जो copies होते हैं उसको store करता है हर एक अलग अलग एक node से ज़्यादा node पे वो replicate करता है, तभी replication of data हम कहते हैं. The replication is the key for providing the high availability. जो replication है वो एक तरह का key है जो कि provide करता है high availability and and
फॉल्ट टॉलरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तो डीएस में, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी के लिए रेप्लिकेशन यूज़ होता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा डेटा सिर्फ यहीं पे स्टोर है और यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा डेटा भी चला जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इसलिए अगर अलग अलग नोड पे होगा तो मेरा फॉल्ट टॉलरेंट भी हो जाएगा, कि फॉल्ट अगर इस नोड पे हुआ है तो भी मुझे इधर से मिल जाएगा, या अगर इन दोनों में हुआ तो यहाँ से मिल जाएगा। एंड फॉर दैट हाई अवेलेबिलिटी भी होती है, कि हाई रिसोर्स हमें मिल सकता है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज हाई अवेलेबिलिटी मीन्स, अब ये हाई अवेलेबिलिटी जो यहाँ पे मैंने बोला है उसका मतलब क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी मीन्स दैट ऑल द यूजर्स कैन एक्सेस डेटा आफ्टर फेलियर ऑफ वन और मोर ऑफ द सर्वर। तो अगर मान लो एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स अगर फॉल्ट हो जाते हैं, फेलियर हो जाता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी होती है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा मिल जाएगा। जो हमें नेक्स्ट पॉइंट वर्ड यूज किया दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? द फॉल्ट टॉलरेंस इज द प्रॉपर्टी दैट enables a system to continue operating properly in the event of failure। तो जब फेलियर अकर भी कर लेता है तो भी वो जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है वो एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि एक सिस्टम को अलाउ करता है कि वो अपने ऑपरेटिंग जो भी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी है, जो भी वो ऑपरेट कर रहा है या वो जो भी ऑपरेट करना चाह रहा है वो ऑपरेट कर सकता है एट द साइमल्टेनियस टाइम दैट व्हेन फेलियर्स अकर। तो दैट वॉट वी डिस्कस अबाउट लॉगिंग एंड एप्लीकेशन। सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on a comment box. Do share our videos, do subscribe our channel, it's a request do for us. Thank you.